Hello everyone, once again welcome to engineering physics classes. Today we are going to discuss electromagnetic chapter, and in electromagnetic chapter we are going to discuss electromagnetic wave equation for free space and also called in vacuum. So question will be asked either free space or vacuum. So first of all, here mention you have to mention the four Maxwell equation. The first Maxwell equation is del dot B is equal to rho. The second Maxwell equation is del dot B is equal to 0 and del cross H E is equal to minus del B upon del T and del cross H is equal to J plus del T upon del T. So these are the main Maxwell equation. On behalf of this four Maxwell equation, you can easily derive the electromagnetic wave equation for free space, conducting medium, non-conducting medium. Even then, you can also derive the Poynting theorem and so many other derivation with the help of this four Maxwell equations. So this is the main part of this derivation. So before we start the electromagnetic wave equation for free space for electric and magnetic field, we should know about the condition. What are the condition? What are the condition of free space? Free space means vacuum. Vacuum means there is no any type of charge available in there. So charge will be zero. Rho is zero. When rho is zero, so current density is also zero. J is also zero. Okay, conductivity is also zero. So here the condition is V is equal to mu naught H and D is equal to epsilon naught E. So these are the main condition for free space. With the help of this condition, we can derive the Maxwell equation for free space. तो सबसे पहले आपको मैक्सवेल की कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी फ्री स्पेस के लिए. तो फ्री स्पेस के लिए सारी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है. रो इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, b is equal to mu naught h and d is equal to epsilon naught e. So now apply this condition in above Maxwell equation. We get, write down here, apply condition. Okay, so when we apply the condition, rho is equal to 0, so equation will be del dot d is equal to 0. This is the first equation. Now second equation as it is, del dot b is equal to 0, and third equation is del cross E is equal to minus del B upon del T, and del cross H is equal to J is equal to 0. So equation will be del D upon del T. Equation number third and equation number 4. So our first objective to find out the electromagnetic wave equation for electric field. So here is the electric field. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको सबसे पहले कर्ल लेना होगा इस इक्वेशन थर्ड का बोथ साइड. सो राइट डाउन हियर, टेकिंग कर्ल और इक्वेशन थर्ड बोथ साइड. ओके, तो दोनों तरफ आपको इसमें कर लेना इक्वेशन थर्ड का. अब इक्वेशन थर्ड का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल बी अपॉन डेल टी. ओके, तो इस इक्वेशन को आप वेक्टर आइडेंटिटी के बेस पे इस इक्वेशन को आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, और जो स्टूडेंट डायरेक्ट लिखना चाहें वो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. अदरवाइज आप उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो मच बेटर. डेल ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी. वी रीअरेंज दिस इक्वेशन, डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस बी. ओके, सो यदि हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है,
जीरो होता है तो इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। सपोज मेरे को इसका वैल्यू निकालनी है, डेल डॉट ई की कैसे निकलेगा, यहाँ से डेल डॉट डी इज इक्वल टू, आपको रो गिवन है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना चाहें आप, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ डेल डॉट ई की वैल्यू आप डायरेक्ट जीरो भी रख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि आप इसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो डेल क्रॉस ई की डायरेक्ट वैल्यू आप माइनस डेल स्क्वायर ई के फॉर्म में भी आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन विल बी डेल बाय डेल टी एंड डेल क्रॉस बी। बी की वैल्यू आपको पता है यहाँ कितना है, म्यू नॉट एच। सो राइट डाउन हियर म्यू नॉट एच। सो माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट ये है म्यू नॉट, उसको आप बाहर ले लीजिए, डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस एच, राइट, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी। अब डेल क्रॉस एच की वैल्यू आपको यहाँ क्या गिवन है, डेल डी अपॉन डेल टी। इस वैल्यू को आप यहां से लिख लीजिए, डेल बाय डेल टी। अगेन डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी, और वैल्यू आपकी आ गई डेल बाय डेल टी, और डी की वैल्यू आपने क्या लिया है, यह है एप्सिलॉन नॉट ई। सो राइट डाउन हियर एप्सिलॉन नॉट ई। सो इक्वेशन विल बी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, कांस्टेंट ये भी है तो इसे आप बाहर ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आएगा डेल ई अथवा डेल टी स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक के फील्ड के रूप में हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। नाउ सिमिलरली वी कैन इजिली फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको फोर्थ दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ इक्वेशन का आप अगेन कर्ल ले लीजिए, कर्ल और इक्वेशन फोर्थ बोथ साइड, ओके। तो अब इसका भी कर लेंगे तो आप कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस एच, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर भी लेंगे हम डेल क्रॉस डेल डी अपॉन डेल टी। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जैसे यहां हमने निकाली थी डेल स्क्वायर ई, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एच होगा, राइट। अगेन डेल बाय डेल टी हमने लिया ये और इसको रीअरेंज कर दिया तो ये हो गया डेल, ये क्रॉस और ये डी की वैल्यू आपकी, ठीक है। तो अब इसमें हम फिर से क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी एंड डेल क्रॉस डी की वैल्यू यहाँ क्या मेंशन है आपको, एप्सिलॉन नॉट ई, तो आप यहाँ एप्सिलॉन नॉट ई आप लिख सकते हैं। सो माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू, कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए, डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस ई। सो माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डेल बाय डेल टी, एंड डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर थर्ड मैक्सवेल, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। नाउ डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, माइनस आप अभी यहीं लिखना चाहे यहीं लिख सकते हैं, डेल बाय डेल टी, और बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एच, ओके। नाउ इक्वेशन विल बी फाइनली डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू, माइनस साइन अब यहाँ आ गया, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए हम, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया। तो इस तरीके से हम, ये आपका 10 नंबर का ये जो डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों के लिए। तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन आप इजिली डिराइव कर सकते हैं, और इसी के बेस पे हम फिर कंडक्टिंग मीडियम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।